Hey students, hi everybody. A very good evening to everyone right in there. Welcome to the very session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy, and I give you all a very warm welcome to this session wherein we are going to deal with the modals and determiners. So everyone, kindly make sure that you all are listening to me carefully. You all are paying attention to every detail that I'm gonna share with all of you related to the given topics, because you know these topics are very important from your examination point of view. And like as per the CBSE sample paper issued by CBSE for class 10, we know that the models and the determiners, they are being asked in a very different manner. Okay, so that's gonna be really important for everybody right in there. Please first guys give me a confirmation in the comment section that I am audible and visible to everybody right in there, because it's gonna be a very important session. I want all of you to listen to me very carefully. If there are certain things that are not clear to you, I would like to clear all those doubts. So please make sure that you all are asking me the doubts in the comment section and you all are listening to me very carefully, because it's really important, everyone. Okay, kindly do that, everybody. Please make sure that you all are listening to me very carefully and going ahead with this very particular session nicely as well. It's like really important. Okay, everyone. So please listen to me very carefully. Okay, guys. Okay, people. So let's get going, everybody. All right, here we go ahead with the session. So my name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy. I'm sure you guys know me so well for the past few years. I'm guiding a lot of you. All right, I've been guiding a lot of you for to be like really good in your communication skills and to be really good in your like academics as well simultaneously, because we need to always maintain a balance whenever we are studying. So it's like pretty important we pay attention to every detail of every topic that is being asked or that is going to be asked in your examination. Alrighty, so modals and determiners, extensive explanation is going to be there. I'm sure you guys know very well like what exactly the modals are, what exactly the determiners are. So you need to be very careful with the fact like what exactly, like how exactly you need to build a difference between all the kind of modals, because आप जितने भी मॉडल्स देखोगे आपको देख कैसे लगेगा मैम यहाँ तो मे भी आ सकता है, मैम यहाँ तो शुड भी आ सकता है, मैम यहाँ तो मस्ट भी आ सकता है, बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो मैं आपको फिर से अभी करवा रही हूँ कि वो छोटा सा डिफरेंस क्या होता है, और आपको वो छोटा सा डिफरेंस बहुत ज़रूरी है कि आप उस डिफरेंस को समझो. इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. So please make sure that you are paying attention to every bit that I'm gonna share with all of you in this very session, which is basically for you, for your good. Let's get going, everybody. The very first topic is your modals. ठीक है, modals क्या होते हैं? हम डिफरेंट सिचुएशंस में ना मॉडल्स को यूज़ करते हैं. हमारे पास सिचुएशंस अलग अलग होती हैं. उन डिफरेंट सिचुएशंस में आप अच्छे से मतलब तरीके से अपने मॉडल्स को यूज़ करते हो. अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना हो, यानी आपको किसी को बोलना हो कि क्या प्लीज़ ये काम मेरा कर देंगे, तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. नेसेसिटी यानी कि जब हम किसी ज़रूरत की बात कर रहे होते हैं, यानी कि आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट. जब भी आप किसी रिक्वायरमेंट की बात करोगे, नेसेसिटी की बात करोगे, ज़रूरत की बात करोगे, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो ज़रूरी है, उस केस में यू विल ऑलवेज गो अहेड विद द नेसेसिटी. ओके, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. उस केस में भी आप नेसेसिटी को कंसिडर करोगे. ऑल राइट. फिर हमारा आता है सर्टेनिटी. सर्टेनिटी का मतलब होता है कि आई एम श्योर. ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा श्योर होते हो, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में वी ऑलवेज गो अहेड विद सर्टेनिटी. सर्टेनिटी इज लाइक कि आप पूरी तरीके से श्योर हो. ऑल राइट. फिर आपका आता है ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपकी ड्यूटी की. ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट. ऑब्लिगेशन रेफर्स टू योर ड्यूटी, मतलब जो आपका फर्ज है. फिर कैपेबिलिटी होती है आपकी क्षमता, यानी कि आपकी अबिलिटी, यानी कि आपकी कैपेसिटी. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट. फिर आता है एडवाइस और सजेशन, यानी कि अगर आपको किसी को कुछ एडवाइस देनी है, आपको किसी को कुछ सजेस्ट करना है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं. पॉसिबिलिटी होती है जब हम बात करते हैं चांसेस की. ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट एनी चांस, व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग, इन दैट केस इट इज़ ऑलवेज लाइक पॉसिबिलिटी. एंड परमिशन होता है जब आपको किसी को कुछ परमिट करना हो, आई मीन जब आपको किसी को मतलब अलाउ करना हो कोई चीज़, उसमें भी हम मॉडल्स यूज़ करते हैं. तो इन सारी सिचुएशंस में हमारे मॉडल्स यूज़ होते हैं, बट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से यू यूज़ इट. ठीक है,
सबसे पहला तरीका क्या होता है, मॉडल्स कैसे हम यूज किए जा करते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये कि मॉडल्स ना कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है, आपको मॉडल के साथ एक मेन वर्ब चाहिए होगा। ठीक है, मॉडल अगर आप नॉर्मली बोल रहे हो लाइक आई कैन, ओके, जैसे आई कैन दिस, सो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। ठीक है, आप उसको ना अकेले नहीं बोल सकते हो, उसके साथ आपको एक मेन वर्ब डेफिनेटली चाहिए होता है। तो आप कैसे मॉडल्स को यूज करते हो, सबसे पहले आप यूज करते हो सब्जेक्ट का। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे होते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। सबसे पहले आपका यूज होता है सब्जेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप यूज करते हो मॉडल वर्ब का, ऑल राइट, जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, यानी कि डिपेंडेंट वर्ब। a verb जो आपको like a verb that gives you an extra information about something, that is where we come with the modal verb। उसके बाद आपका मेन वर्ब आता है, और मेन वर्ब हमेशा चाहिए होता है, मॉडल वर्ब को हमेशा एक सपोर्ट चाहिए होता है, और वो सपोर्ट हमेशा मेन वर्ब प्रोवाइड करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला आपको आई टीच इंग्लिश, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं आई एम एन इंग्लिश टीचर, आपको समझ आ जाएगा मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ आई कैन टीच मैथ्स, तो वहां पे आप मेरी अबिलिटी देख रहे हो। कैन इज यूज फॉर समबडीज अबिलिटी, यानी किसी की क्षमता, यानी कि मैं मैथ्स पढ़ा सकती हूँ, दिस इज व्हाट इट मीन्स। ऑल राइट, तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमें चेंजेस लाने हैं इन ऑर्डर टू लाइक मेक अ डिफरेंट मीनिंग इन द सेंटेंस। यहाँ पे आपको पता है, अगर मैं नॉर्मल मैंने आपको बोला आई टीच इंग्लिश, यू गॉट दैट वेल, बट अगर अब मैं आपको ये बोल रही हूँ आई कैन टीच इंग्लिश, दिस बेसिकली मीन्स आई हैव द अबिलिटी एंड द कैपेसिटी, आई एम केपेबल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, दैट इज वॉट इट मीन्स। ऑल राइटी, क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कैसे हमें मॉडल्स को यूज करना है। देखो बेटा, एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं ना, हमेशा मॉडल्स को समझने के लिए आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए। उसका क्या मतलब है, जब भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूरा सेंटेंस पढ़ो, यू नीड टू रीड द होल सेंटेंस, फुल सेंटेंस को पढ़ो, उससे समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली आर वी हैव टॉकिंग अबाउट। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, मोहिनी में अटेंड द क्लास टुमारो। तो अगर मैं बोल रही हूँ दैट मोहिनी अटेंड द क्लास टुमारो, ऑल राइट, सॉरी, मोहिनी अटेंड्स द क्लास, ठीक है, सो आई नो कि वो क्लास अटेंड करती है। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ मोहिनी मे अटेंड द क्लास टुमारो, तो यहाँ पे ये मे ना एक तरीके का डाउट डाल रहा है। ठीक है, डाउट से क्या मतलब हुआ कि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो क्लास अटेंड करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि मे में जो हमारी पॉसिबिलिटी होती है वो 50-50 हो जाती है। सो if I am not sure whether she is going to attend the class or not, that is why I am putting here may। तो मे एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो बेसिकली ये बताता है कि क्लास होगी या नहीं होगी, आई मीन ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरीके से फॉर्म किया है। मोहिनी जो है वो तो आपका सब्जेक्ट है, मे जो है वो आपका मॉडल वर्ब है। ठीक है, कीप इट इन योर माइंड, ये आपका मॉडल वर्ब है, और अटेंड जो है वो आपका मेन वर्ब है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड दैट टू करेक्टली इन द बेस्ट एंड द perfect manner, it's very important। So this is what the exact situation of your modal verb is। Now we are starting with the respective modal verbs। Please pay attention, ध्यान से सुनो। पहला है may। देखो मे मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ज्यादातर हम यूज करते हैं जब हमारी किसी चीज की चांस जो है वो 50-50 हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ आई मे टेक द क्लास टुमारो, तो दैट मीन्स कि मे बी मेरे को कुछ और काम है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं क्लास ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी, तो 50-50 चांसेस है। लेकिन ये बात आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए कि मे हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करता है 50-50 के केस में। ठीक है, जब 50-50%, अब मुझे पता है कि बारिश का मौसम बना हुआ है, ठीक है, सुबह भी बारिश हुई थी, दोपहर को भी हुई थी, तो मुझे लग रहा है दैट इट मे रेन इन द नाइट ऑल्सो। ठीक है, तो शायद है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आई मीन इट्स नॉट द ब्लैक क्लाउड्स दैट आई सी, बट मुझे लग रहा है एकदम काले बादल हो रखे हैं, ठीक है, तूफानी हवाएं चल रही हैं, तो वहां पे मैं क्या बोलूंगी, इट विल रेन टुडे। तो वहां पे विल क्या होगा, विल मेरा श्योरिटी दे रहा है, विल मतलब मैं डेफिनेटली श्योर हूँ। Okay, so that is what you need to keep in your mind. When we are talking about will, we are very sure, but when we are talking about may, we are not sure. We are keeping it like 50-50. And this is just 50-50. क्योंकि जो may का आपका past form है, that is might. और उस केस में, might के केस में, it is always less than 50%.
ठीक है, माइट के केस में क्या आ जाता है, इट इज ऑलवेज लेस देन 50%। ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ना आपका जो मे में तीन चीजें इंटरकनेक्टेड रहती हैं, एक होता है विश, एक होता है होप और एक होता है फेथ। दीज थ्री थिंग्स दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ऑल राइट, व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द पॉसिबिलिटी, ठीक है, 50-50 पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन जब आप किसी किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हो या फिर आप किसी चीज़ की आशा कर रहे हो या आपको किसी चीज़ का यकीन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नॉर्मल से एग्जाम्पल आपको दूँ, दैट आई मे गॉड ब्लेस यू, भगवान, मेरी आशा है कि भगवान तुम्हें ब्लेस रखे, ठीक है, भगवान तुम्हारा ख्याल रखें, भगवान तुम पे बहुत कृपा बरसाएं। तो ये मेरी विश हुई, मेरी इच्छा भी है, ये मैं होप कर रही हूँ, मैं ये आशा कर रही हूँ और मेरा इतना भगवान में यकीन है कि मैं भगवान को मतलब याद करके आपको ब्लेस कर रही हूँ। सो वहां पे आप मे यूज करते हो। फिर जब आपको परमिशन लेनी हो ना, परमिशन और पॉसिबिलिटी थोड़ा इंटरकनेक्टेड रहता है। परमिशन यानी कि जहाँ पे आपको पता है चांस लेस देन 50% है। मैं हमेशा बच्चों को ये कॉन्टेक्स्ट देके समझाती हूँ। आपको पता है कि आपने सुबह से पढ़ाई नहीं की है, आपके 2 दिन बाद एग्जाम है, आपने मम्मी से पूछा मम्मी मे आई गो आउट टू प्ले फॉर हाफ एन आवर, तो हो सकता है बिकॉज योर मम बिलीव्स दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप द माइंड फ्रेश एंड एवरीबडी शुड कीप द माइंड फ्रेश इन ऑर्डर टू स्टडी वेल। तो आपको पता है कि परसों एग्जाम है, अभी तो कुछ पढ़ाई की नहीं है ढंग से, सुबह भी मम्मी से डांट पड़ गई थी। आप ऐसे कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछते हो मम्मी मे आई गो आउट, तो चांसेस 50-50 है, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है। ठीक है, तो जब चांसेस आपके मतलब परमिशन मिलने के भी 50-50 हो, किसी चीज की पॉसिबिलिटी भी 50-50 हो, तो उस केस में यू शुड ऑलवेज बी गोइंग अहेड विद लाइक मे। ठीक है, इट्स आई एम सॉरी, आई हैड रिटर्न हेयर लेस देन, नो इट्स नॉट लेस देन, okay, it is just your 50-50 चांस। ओके, इसमें भी जब 50-50% चांसेस होते हैं ये सुनने के, आप ज्यादातर परमिशन हमेशा तभी लेते हो जब आपको यस सुनना होता है, तो इस केस में यस की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, इसलिए वी आर सेइंग कि यहाँ पे परमिशन आएगा। ऑल राइट, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? तो ये है, एंड नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है इट मे स्नो टुडे। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि आज शायद बारिश होगी। चांसेस क्या है, 50-50% चांसेस है, हम लोग श्योर नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है मे आई गो टू अटेंड द पार्टी, परमिशन के लिए आप पूछ रहे हो। ऑल्सो जो मे है वो आपका फॉर्मल सिचुएशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। देन मे यू गेट ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, इट्स अ विश, इट्स अ होप, इट्स अ फेथ है इस पे। Then she is practicing hard so that she may win the first prize. ये purpose है. I'm sorry, I forgot to. I mean, I missed mentioning the purpose. Purpose मतलब जब आपका कोई particular aim होता है, ठीक है। सो अब मुझे यहाँ पे पता है कि वो इतना ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए कर रही है जिससे कि मतलब कि जिससे कि वो फर्स्ट प्राइज जीत सके। That is what it means. Okay, clear? आगे चलते हैं। अब हमारा कैन आता है। कैन आपका ब्रॉडली यूज होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी में, यानी कि आपकी क्षमता में, ठीक है, उसमें ये ज्यादा यूज होता है। और यहाँ पे भी आपका पॉसिबिलिटी आता है और परमिशन आता है, लेकिन दिस कम्स विद 100% थिंग। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये बोला कि मम्मी कैन आई गो आउट बिकॉज आई हैव बीन स्टार्टिंग सिंस मॉर्निंग एंड नाउ आई एम रियली वेरी टायर्ड, आई नीड टू जस्ट प्ले समथिंग, be it badminton or cricket with my friends for like half an hour। तो आपको पता है वहां पे उस बात की, किस बात की, उस बात की परमिशन मिलने के 100% चांसेस होते हैं। तो कैन इज कूल। लेकिन जब पॉसिबिलिटी की बात आती है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट इट कैन बी डन, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि क्या तुम ये कर सकते हो, मतलब हो सकता है ये कि ये पॉसिबल है कि हम अपना ये टारगेट अकम्प्लिश कर लें इतने दिनों में, तो ये लाइक या इट कैन बी डन। तो आपको पता है कि पॉसिबिलिटी ना थोड़ी 50% से ज्यादा है, ठीक है, लाइक 50 to 100% के बीच में। सो यू लाइक हाँ हाँ हो सकता है शायद। सो यू मे नॉट बी श्योर अबाउट दैट, बट या यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि हो सकता है। सो पॉसिबिलिटी किसी चीज की चांस जो है अगर वो 50% से ज्यादा है, तो यू कैन गो अहेड विद द यूसेज ऑफ द मॉडल वर्ब विच इज कैन। ठीक है, अब थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। एवरीवन कैन फिनिश दिस टास्क। अब मेरे को पता है कि इसके चांसेस 100% है, सब लोग इतने काबिल हैं कि सब लोग ये वाला जो काम है ना 100% आई एम श्योर कि ये सब लोग ये काम ना इतनी देर में फिनिश कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स ये पॉसिबिलिटी हो गया। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैन आई गो टू मीट सौरभ, क्या मैं जा सकता हूँ सौरभ से मिलने। तो यहाँ पे भी परमिशन आ गया, जहाँ पे आपको पता है कि चांसेस थोड़े 50% से ज्यादा हैं।
सिमिलरली आई कैन नॉट फिनिश रीडिंग इन 15 मिनट्स, मैं इसकी रीडिंग 15 मिनट में फिनिश नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी आ रही है। तो ज़्यादातर जो कैन है वो आपकी कैपेबिलिटी के लिए ही यूज़ किया जाता है। इट इज़ लाइक ब्रॉडली यूज्ड इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट योर एबिलिटी, योर कैपेसिटी, योर कैपेबिलिटी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विल। देखो विल होता है एक तो आपकी हैबिट बताने के लिए, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ दैट माई ब्रदर विल नॉट अकम्पनी मी टू द मार्केट, ही नेवर गोज, तो मुझे पता है वो कभी नहीं जाता है तो वो नहीं जाएगा, तो यानी कि उसकी हैबिट है। विलिंगनेस दिखाने के लिए, जैसे मैंने बोला कि मेरे अगर छोटे कजिन का क्या कहते हैं एग्जाम है, तो मुझे मेरा रूटीन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन मैं कह रही हूँ दैट आई कैन हेल्प यू विद द स्टडीज़, तो मैं खुद वॉलंटियर कर रही हूँ, विलिंग हूँ मैं, मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि मैं हेल्प करूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे विल लगाया। फिर आता है आपके फ्यूचर के लिए, लाइक व्हेन यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट आई विल वॉच ब्रह्मास्त्र टुनाइट, तो मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि आज रात को मैं ब्रह्मास्त्र देखूंगी। ऑल्सो सर्टेनिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है, जब मैं श्योर हूँ, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि यू नीड टू स्टडी हार्डर अदरवाइज यू विल नॉट पास, तो मैं देख रही हूँ कि परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम से अच्छी नहीं चल रही है, और मैं कह रही हूँ कि अभी तो बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं श्योर हूँ कि तुम पास नहीं होने वाले हो, तो वहाँ पे सर्टेनिटी आई, ना पे श्योरिटी आई है। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे विल का यूज़ किया है। I'm using will there because I am sure that if this is not going to happen, then this will happen. So whenever the surety is there, you will use the modal verb will. Keep it in your mind, an important point. ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जितने भी टेंथीज ने देखा होगा, ठीक है, उसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन है, जहाँ पे वो स्मोक से रिलेटेड बात कर रहा है। तो जब आप श्योर होते हो, आप विल का यूज करते हो। जैसे अब यहाँ पे देखो फ्यूचर है, द प्रेसिडेंट विल डिलीवर हर स्पीच टुमारो, दिस इज एक्सप्रेसिंग फ्यूचर। जो प्रेसिडेंट है वो अपनी स्पीच कल डिलीवर करेगी, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अक्षरा विल नीड योर हेल्प इन कंप्लीटिंग हर डेली चोर्स, अक्षरा को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी उसके डेली चोर्स, बेसिकली रेफर्स टू द डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। ठीक है, उसको अपने रोज के काम खत्म करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, विल नीड योर हेल्प, सो ये विलिंगनेस है कि उसको तुम्हारी हेल्प चाहिए, वो चाहती है तुम हेल्प करो। ऋतु विल नॉट लिसन टू हर पेरेंट्स, तो यहाँ पे हम हैबिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज शैल। ठीक है, शैल इज अगेन लाइक समथिंग दैट यू यूजुअली यूज विद विल। क्यों? क्योंकि विल में ना आपका सबसे पहले होता है, जो आपको चीजें समझनी है, एक होता है थ्रेट, यानी कि किसी चीज से कोई डर, यानी कि वार्निंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ठीक है, उसके बाद होता है वार्निंग। ठीक है, उसके साथ साथ आपका क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट लाइक थ्रेट इज प्लस लाइक थ्रेट एंड वार्निंग दे आर सेम, देन वी हैव कमांड, लाइक फॉर एग्जांपल इफ योर पेरेंट इज सेइंग दैट यू शैल नॉट डू दिस, सो दैट इज अ कमांड, ऑलराइट। इफ आई एम सेइंग यू विल नॉट डू दिस, वहां पे मेरी कमांड नहीं आ रही है, बट शैल आप हमेशा कमांड के लिए यूज कर सकते हो, ऑलराइट। या फिर अगर कोई एडवाइस, सजेशन या रिक्वेस्ट है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। साथ के साथ आप अश्योरेंस देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल दैट आई शेल टेक केयर ऑफ दिस, ऑल राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ आई विल टेक केयर ऑफ दिस, इसका ये मतलब है यहाँ पे मैं अश्योर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैं इसका ध्यान रखूंगी, ऑल राइट। लेकिन जब मैं आप शेल का यूज कर रही हूँ दैट आई शेल टेक केयर ऑफ दिस और ही शेल टेक केयर ऑफ दिस, इट मीन्स आई एम गिविंग एन अश्योरेंस, मतलब मैं आपको ये कंफर्मेशन दे रही हूँ कि मैं अगर बोल रही हूँ मैं इसका ख्याल रखूंगी, तो इसका मतलब मैं इसका ख्याल रखूंगी, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। रिक्वेस्ट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो शेल आता है, जब हम फ्यूचर के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हो देन ऑल्सो वी कम विद शेल। Okay, like you can say I shall go to the school or I shall attend the meeting, like that. But like broadly you use it like for expressing the command, or like when there's an advice, when there's a suggestion, when there's a request, or when there's a threat plus warning. Okay, clear? ठीक है, चलिए now let's have a look at the examples. We shall go to visit the zoo tomorrow. फ्यूचर की बात है, हम लोग जाएंगे जू विजिट करना कल। Shall I bring a glass of lemonade for you? क्या मैं आपके लिए एक ग्लास नींबू पानी ले आऊं? ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट बेसिकली। Shall I shut the door? एडवाइस है। देखो आप यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मामी एडवाइस कैसे हुई, तो कभी कभी हम एक कमरे में या बालकनी में या कहीं पे भी कहीं बैठे हों
और आपको लग रहा है बहुत ठंडी हवाएं आ रही हैं, गेट बंद करने की ज़रूरत है, सो यू आर लाइक कि शैल आई शट द डोर बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक द कोल्ड, so that more or less not works as like something you're seeking the permission from the person, but instead that is an advice. आप कह रहे हो कि बहुत ठंडा हो चुका है तो क्या मैं गेट बंद कर दूं, so that is more like an advice. ठीक है, बिकॉज वहां पे आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर फीलिंग कोल्ड यू नीड टू टेक एन एक्शन फॉर दैट. ओके, सिमिलरली दे शैल विन दी मैराथन. तो डिटर्मिनेशन यहाँ पे, आई एम सॉरी आई एम नॉट श्योर, या हाँ, डिटर्मिनेशन मतलब when you are sure and when you are confident, okay, and when you want to take a perfect decision for yourself, that is where we go ahead with determination. ठीक है, so that is what it is. Now we are moving towards the might. Might is basically the past form, all right, of make. So keep it in your mind. Usually the very uses would be same, but it's just that when you're talking about something in the past, so therein I mean the things will change a little. यहाँ पे जो might है ना, it talks about what? It talks about less than 50% chances. ठीक है, अभी यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है ना, अगर मैंने बाहर देखा, एंड आई नो इट्स अ लिटिल सनी बट द विंड इज ब्लोइंग, ऑलराइट, द कोल्ड विंड इज ब्लोइंग एंड देयर आर लिटिल क्लाउड्स आल्सो, so I'm saying it might rain, so I'm not sure about it. It is like less than 50%, or you can say like very less possibility. So whenever we are talking about बहुत कम chances है किसी चीज के, वहां पे आप हमेशा might का यूज करोगे. ठीक है, जब भी किसी चीज के बहुत कम चांसेस होते हैं, हम उस केस में माइट का ही यूज करते हैं. फिर हमारी आती है परमिशन. ठीक है, परमिशन के केस में भी हम लेस देन 50% ही रखते हैं. ओके, जब आपको मतलब कोई परमिशन लेनी हो, जैसे लाइक माइट आई स्विच ऑन द लाइट, आपको पता है इस केस में जो येस मिलने का, आप परमिशन कब लेते हो? परमिशन इज मोर अबाउट लिसनिंग अ येस, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लाइक परमिशन इज मोर अबाउट कि आपको हाँ सुनना है, दैट इज व्हाट इट इज. लेकिन यहाँ पे परमिशन इज व्हाट कि आपको जो चांस है हाँ सुनने के, दैट इज लेस देन 50%. और आपको अगर किसी चीज को लेके गेस करना है, ऑल राइट, लाइक एज इन इफ यू वांट टू गेस समथिंग, आपको मतलब कुछ चीज की श्योरिटी नहीं है एंड यू वांट टू आस्क इट, सो उस केस में भी आप माइट का यूज करते हो. ऑल राइट, इज दैट क्लियर? ओके प्रियांशी, आई गॉट दैट. ठीक है, इज दैट क्लियर? ऑल राइटी, चलिए आगे चलते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज हर वॉलेट माइट बी इन द बेडरूम. तो इसकी लेस पॉसिबिलिटी है. देखो, आपको मॉडल्स को लेके ना, मैंने ये बात हमेशा बोली बेटा, मैं फिर से बोल रही हूँ, मॉडल्स को लेके प्रैक्टिकल रहो. जितना प्रैक्टिकलिटी में यूज करोगे ना अपनी डेली लाइफ में, उतना अकस्टम्ड हो जाओगे. ऑल राइट, द मोर यू आर यूजिंग इट, यू विल बी अकस्टम्ड टू इट. हाय प्रियांशी, हाय. ऑल राइटी, तो यहाँ पे अब ये लेस पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. अब मैं बोल रही हूँ माइट आई स्विच ऑन दी लाइट. यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी है. आपको लगता है कि जैसे आपका भाई है, ऑलराइट, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और वो पूरी रात पढ़ रहा था, अभी वो दिन में सो रहा है, बट यू वर स्लीपिंग एट नाइट एंड यू आर ऑफ कोर्स अवेक इन द डे टाइम. सो आप अगर चाहते हो कमरे में एंड यू आर लाइक, आप अपनी सिस्टर से पूछते हो कि मैं लाइट ऑन करूँ, सो योर सिस्टर सेज नो 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 डोंट डू दैट, ही वाज नॉट asleep the whole night and now he is sleeping, so let's not disturb him. तो जब चांस किसी चीज के हाँ सुनने की लेस देन 50% होता है, उस केस में व्हाट डू वी डू? उस केस में वी ऑलवेज गो अहेड विद माइट. ओके, कीप इट इन योर माइंड. एंड एग्जाम में जब भी बेटा स्टेटमेंट दे रखी है, फिल इन द ब्लैंक दे रखा है आपके एग्जामिनेशन में, प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद आपको उस गैप को फिल करना है. आप बिना उस सेंटेंस को पढ़े अगर उसे फिल कर रहे हो, सो यू विल बी इन प्रॉब्लम एंड डोंट लेट दैट हैपन. ठीक है, क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम. दैट माइट बी अ न्यू स्टूडेंट इन द क्लास. सो यहाँ पे जो माइट है, दिस इज बेसिकली अ गेस. मैं एक गेस कर रही हूँ कि हो सकता है वो शायद एक नया बच्चा है क्लास में. तो फिर से यहाँ पे मैं गेस तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे गेस के ना चांसेस हो सकते हैं लेस देन 50% है. मैं नहीं श्योर हूँ कि वो सही में एक नया बच्चा है या नहीं है. ठीक है, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर चूजिंग योर आंसर्स in your examination. Try to use the modals as much as you can in your home, okay, with your siblings, with your friends, with your relatives, or with whomsoever you have a chance to speak with. Okay,
अब हमारा आता है मस्ट। मस्ट आप किस लिए यूज करते हो? जब कोई जरूरत होती है, यानी कि किसी चीज की बहुत ज्यादा नेसेसिटी होती है, कंपल्शन होता है, किसी चीज को अगेन फिर से जरूरत होती है। डिटर्मिनेशन यहाँ पे भी आता है। वी डिड डिटर्मिनेशन इन द प्रीवियस पार्ट एज वेल, राइट? शाल में हमने डिटर्मिनेशन किया है। तो बहुत सारे मॉडल्स में आपको ऐसे लगेगा कि सबके जो यूजेस है ना वो सेम ही है, एंड विच इज एक्चुअली अ फैक्ट, ऐसा होता भी है। बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि इसके और भी यूजेस होते हैं। ठीक है, तो सारे यूजेस को दिमाग में रखोगे तो जाके सही आंसर पे आओगे। ठीक है, फिर आता है एम्पैथिक एडवाइस। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पैथिक एडवाइस? फॉर एग्जांपल, empathy is like what? Like you're keeping yourself into the shoes of someone else. Like, you know, how does it feel to have a stomach ache, or how does it feel to have a headache, or how does it feel to have a backache or a toothache? So you understand all these situations well, and that is where comes your empathic advice. Like, you're showing your empathy to someone by putting yourself in the same situation, and then on the basis of your personal experience you are making someone understand something. That is where that advice comes from. Then the strong probability. This is like 100% chance. Okay, like total 100% without any doubt. मतलब कैन में मैंने आपको बताया 100% होता है। Like you can say कि 50% से ज़्यादा और 100% से कम, ठीक है, कैन में। लेकिन मस्ट में strong probability होती है, यानी chances they are like totally 100%. ओके, फिर हमारा होता है ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। उसके बाद हमारी क्या आती है? उसके बाद हमारी आती है ऑब्लिगेशन, ठीक है, या फिर हमारी कोई ड्यूटी। ठीक है, अजम्पशन एवरीबडी, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यू आर अज्यूमिंग समथिंग, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, यू आर जस्ट अज्यूमिंग इट। एग्जाम्पल्स देखो। एक और चीज जो मस्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका कोई पास्ट टेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे कैन का भी कुड आएगा, मे का माइट आएगा, शैल का शुड आएगा, लेकिन मस्ट का कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं है। एंड इट इज यूज फॉर ऑल द पर्सन्स, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, और ये हर पर्सन्स के लिए यूज होता है, प्रेजेंट भी फ्यूचर भी। ओके, और जो नेगेटिव है मस्ट का वो है मस्टंट, कीप इट इन योर माइंड। एंड इंटेरोगेटिव मस्ट का इज मस्ट आई, मस्ट वी और मस्ट दे। यू नीड टू कीप ऑल दिस इन योर माइंड ऑलवेज एंड फॉर एवर. Okay, it's a very important point. Now, moving ahead, let's have a look at the examples. Must we always respect our elders? So, this is coming in a question form because, of course, the modal verb would be coming right at the beginning. ठीक है, कि must we always respect our elders? तो ये duty है, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन, ठीक है, दैट इज व्हाट इज कमिंग हियर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, एंड देन दिस, यू मस्ट कंप्लीट योर चोर्स बाय टुमारो, दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी एंड द ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी में क्या आएगा? मिलन मस्ट रीच ऑफिस ऑन टाइम टुडे, मतलब ये जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेलिंग यू दैट यू मस्ट वॉच द सेशन आई टेकन yesterday, all right, so that means that it is like very much important, it is like necessary. You must not always do as she says. So ये compulsion है कि हमेशा वो करने की जरूरत नहीं है जो वो कहती है। रूही मस्ट बी एट द जिम, सर्टेनिटी, यानी कि जब आप किसी चीज को लेके श्योर हो तो वहां पे आप बोलोगे मस्ट। सर्टेनिटी इज like 100% chances there. So this is more like what? Like probability, a strong probability. This is same as this. Riya must not be attending her class right now. So strong probability है। I know on the basis of the things, for example, अगर मैं बोलूँ that my mom must be in the park right now, or my mom must be walking, all right. So I know that like this is her usual routine and this is what she must be doing right now. So there is a strong probability of the same. There is a strong like chance of it. Okay. Now, when you're assuming, so assumption, like it's a guess that is coming from the previous one as well. Like Akshit must be 25 years old. So what are we here doing? We are assuming it. We are not sure about it, but we are just assuming it. It's just an assumption. You must see a dentist for your toothache. Toothache मतलब मुझे पता है यार बहुत दर्द होता है. So I'm advising you that you must see a doctor before it starts hurting a lot. So I am on the basis of what I experienced, I am telling you now, all right, to be cautioned about it. So it's an empathic advice. Okay? Clear? All right. Yes, everybody. Clear to everyone? Is it clear? Okay, people. Now let's get going.
अब हमारा आता है हैव टू, हैज टू और हैव टू। देखो आप ये यूज करते हो लाइक हैज, हैव एंड हैड, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। और ये आपके आते हैं एडवाइस के लिए, कंपल्शन के लिए, या फिर आप किसी चीज को रिकमेंड कर रहे हो, लाइक यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग, और लाइक शी हैज टू लिसन टू मी, ओके, और लाइक यू हैड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट। So when we are talking about something wherein I am recommending, that is where we say that we either use has, we either use have, or we either use had to. That's what you need to keep in your mind every time. It's like very important thing. Okay? Next everybody. Have to, has to, they are used in present and the future tense. ठीक है, आपका have to और has मैंने आप लोगों को ये tenses में भी बता रखा है। have और has आपका present और past में यूज होता है। has आपका singular subjects के साथ यूज होता है। have आपका plural subjects के साथ यूज होता है, ठीक है। हैड आपका पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है, दोनों के लिए यूज होता है वो, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। नाउ वी सी दैट इन केस ऑफ नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस, मतलब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो डू, डज एंड डिड, ठीक है, दे आर यूज्ड विद हैड टू एंड हैव टू। तो अगर आप नेगेटिव बना रहे हो या क्वेश्चंस बना रहे हो, सो डू, डज और डिड वो ना हैड टू के साथ यूज होते हैं या फिर हैव टू के साथ यूज होते हैं। कीप इट इन योर माइंड। Now just have a look at the example. I have to look for a new hostel by next week. मुझे एक न्यू हॉस्टल देखना पड़ेगा अगले हफ्ते तक। ये कंपल्शन है। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये नेसेसिटी है, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। Okay, his father has to start working now. ये एक advice recommendation है. Maybe they are suffering from any sort of financial aspects, and on the basis of that, I've given this advice that they have to start, he has to start working now. Now next, they had to go to the principal for reporting mischief. उनको ना प्रिंसिपल के पास जाना पड़ा था, किस लिए, मिसचीफ को रिपोर्ट करने के लिए। So ये कंपल्शन हुआ, but it is a compulsion in past because we are using had here. Now negative and interrogative. Negative, you do not have to wear the jacket. तुमको जैकेट नहीं पहननी है। मुरली doesn't have to eat the whole cake. मुरली को पूरा केक नहीं खाना है। तो यानी कि जब भी आपको नेगेटिव बनाना है, सो आप प्लूरल में डू के साथ नॉट लगा दोगे और आप सिंगुलर में डस के साथ नॉट लगाओगे, देन यू विल बी एबल टू मेक इट इधर प्लूरल और सिंगुलर, ठीक है। अक्षय डिडंट हैव टू कुक, अक्षय को कुक नहीं करना पड़ा था। Did you have to work on holidays? So simple sentences. Now coming to would, everybody. ठीक है, would is basically the past form. This is basically the past form of what? Of will. ठीक है, प्लीज ध्यान दो कि हम पास्ट कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जिनके भी पास्ट फॉर्म है ना उनका यूज थोड़ा बहुत सेम है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये किस लिए यूज किया जाता है, विल मैंने आपको बताया था, जैसे ये भी विश प्रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कौन सी विश और प्रेफरेंस, इमेजिनरी, ठीक है। सो इमेजिनरी विश या प्रेफरेंस या फिर इमेजिनरी कंडीशन। देखो प्रेफरेंस के लिए तो जैसे अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या खाना पसंद करोगे, ठीक है, लाइक वुड यू लाइक टू हैव पिज्जा और बर्गर, तो यहाँ पे तो आपकी प्रेफरेंस हो गई है, ठीक है। लेकिन जब आप विश कर रहे हो ना, तो वो एक इमेजिनरी सिचुएशन है। जैसे अगर मैंने आपको बोला इफ आई सॉरी आई विश आई वुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, सो दिस इज लाइक एन इमेजिनरी कंडीशन which doesn't seem to be like a fulfilling situation. Okay, तो वहां पे मेरा आप would ही देखोगे। Now, अगर आप किसी past habit की बात कर रहे हो, okay, which is very important. Past habit का क्या मतलब है, जैसे मैं बोल रही हूँ that I would get up at 6 o'clock when I was in my college. So मैं उठा करती थी। So यहाँ पे जब भी आप अपनी habit को reflect करोगे तो आप would का use करोगे। Polite request, would you please get me a glass of water? क्या आप प्लीज मेरे लिए एक पानी का ग्लास ले आएंगे? तो यहाँ पे आप would का यूज कर रहे हो, बट द थिंग इज यू नीड टू नो कि जो would है ना, ये आपका यूजुअली फॉर्मल सिचुएशन में ज्यादा चलता है। So when we are dealing with the formal situations, therein you will have to go with the usage of the verb, which is what, which is would. So kindly keep that in your mind. Okay, let's look at the examples now. Anisha would wake up and have a cup of hot coffee first. तो ये उसकी पास्ट हैबिट है कि वो पहले उठती थी और सबसे पहले वो क्या लेती थी, वो एक हॉट कॉफी पीती थी। वुड यू लाइक टू गो टू द मॉल विद मी, पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरे साथ मॉल जाना पसंद करोगी?
ठीक है, ये ना एक पोलाइट रिक्वेस्ट है और ये एक फॉर्मल सिचुएशन में ही यूज किया जाता है. सिंस इट इज लाइक somebody is asking someone to like accompany to the mall, so seems to be a formal situation and that is how it is being asked. Now I wish I would be the head boy of my school. ये imaginary condition है कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि शायद काश मैं मेरे स्कूल का हेड बॉय होता. ठीक है, भूमिका would enroll in Oxford if she wins the scholarship. प्रेफरेंस है कि वो ऑक्सफोर्ड में कब एनरोल करेगी अगर वो स्कॉलरशिप जीत जाती है तो. All right, that is what she says. So there is a condition right in here that Bhumika is going to take the admission in the Oxford University only and only when she wins the scholarship. ठीक है, जब वो स्कॉलरशिप जीत जाएगी तभी वो क्या कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनरोल करवाएगी. दैट्स व्हाट वी आर हियर लुकिंग फॉरवर्ड टू. ओके, क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं शुड की. ठीक है, शुड आप कब यूज करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो शुड का जो आपका मेन यूज है ना वो आप हमेशा यूज करते हो उसको किसी एडवाइस के लिए. ठीक है, जब आपको कोई एडवाइस देनी हो या फिर जब आपको मतलब रिस्पेक्ट के लिए बात करनी हो या फिर आपको ड्यूटी की बात हो या फिर ऑब्लिगेशन. देखो मस्ट में भी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन आया था. ठीक है, लेकिन मस्ट आपका ब्रॉडली यूज किया जाता है जब हम किसी नेसेसिटी बहुत ही एक क्रिटिकल एक ऐसी चीज की बात कर रहे होते हैं विच इज कैंट बी अवॉइडेड, तो वहां पे आप उसको ज्यादा यूज करते हो. तो शुड आपका ऑब्लिगेशन आता है जैसे कि ड्यूटी है लाइक यू शुड टेक केयर ऑफ योर यंगर सिस्टर, यू शुड टेक केयर ऑफ योर मदर, ऑलराइट, यू शुड पे प्रॉपर अटेंशन टू योर जॉब, you should pay proper attention to the bank details. So these things work as the advice or either the duty or the obligation. That is what we see. Is that clear, everybody? Yes, everyone. Is that clear, everyone? Aryan, what is your doubt? Thank God I can see the comments now. Oh my God, the spammers, they have left now. Okay, here we go. Here we are. Yeah, tell me, Utkarsh. I don't know. May say don't hata do. I'm not understanding anyway. Okay, we can find, ma'am, in sentence we can find modals. Yeah, Priyanshi, I mean in sentence, matlab, what are you talking about? I'm not understanding your question. Hey, Shivanshi, hi. ओके, सो मैंने ड्यूटी बताया आपको, एडवाइस बताया, ऑब्लिगेशन बताया, फिर मैंने आपको बताया इमेजिनरी रिजल्ट्स. ठीक है, मतलब आप कुछ एक ऐसी सिचुएशन है जो हुई नहीं है लेकिन आप उसके रिजल्ट के बारे में अगर बात कर रहे हो तो देयर कम्स योर शुड. देन वी हैव द पॉसिबिलिटी. ठीक है, जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेयर अगेन कम्स योर 100% पॉसिबिलिटी. तो अब आपके एग्जाम में आपको खुद से दिमाग लगाना होगा. ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ 10th दैट वी हैव रिसीव, वी हैव एनालाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक मॉडल्स को तो ऐसे ही पूछा गया है. तो वहां पे आपको ना देखना है कि कौन से मॉडल का क्या यूज है और आपको पूरे सेंटेंस का पहले मीनिंग पता करना है. देन गिव मी द राइट आंसर. ऑल राइट, इज दैट क्लियर एवरीबडी? Is that clear to everyone? Utkarsh, my dear, I'm not really interested in what is going on in the chat. If you have any question, if you have any doubt related to what we are doing, you may ask me that. All right. Otherwise, do not interrupt in the class with anything which is not really contextual. All righty. Here we go. Hey Farhan, hi. So caution या purpose के लिए, जैसे for example अगर आपको किसी को बोलना है that you should not, for example right now if I'm saying that you should not pay attention to the spammers. Okay, so this is what I'm cautioning you because they are here only to waste the time of others as well as like they are the idle people in the world. Like their parents have kicked them out of their houses. Okay, so like obviously they are not getting the attention anywhere in the world. And we really don't have any time to give them the attention because we are really busy in doing some really fruitful work, right? So like that is how you can use the word should. Okay, so it is used with all the persons, be it first person, be it second person, be it third person. So it is used with all of them, so kindly keep in your mind that how you're using it. Okay, is that clear everybody? Now see what is the like what are the examples. You should greet your elders. आपको हमेशा अपने बड़ों को greet करना चाहिए. Duty आ गई, साथ के साथ ही आपका obligation. Duty and obligation, they are interchangeable, so of course you can go ahead with it.
वी शुड नॉट बी लेट फॉर लेक्चर, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, लाइक यू शुडंट बी पेइंग अटेंशन टू दी स्पैमर्स, यू शुड कम इन द क्लास ऑन टाइम, ये आपके लिए ये ऑब्लिगेटरी है, दिस इज लाइक योर ड्यूटी। देन मोनिशा शुड बी एट द एयरपोर्ट बाय 3 PM, पॉसिबिलिटी, मतलब ये पॉसिबिलिटी, आई नो दैट उसकी फ्लाइट है, ठीक है, 5 बजे की, तो 3 बजे तक तो वो पक्का से वहीं पे होगी, तो किस टाइप की पॉसिबिलिटी हुई, 100%। वन शुड नॉट ड्रिंक टू मच कैफीन, किसी को मतलब बहुत ज्यादा कैफीन नहीं पीना चाहिए, एज इन लाइक कैफीन इज समथिंग जिससे कि आपका कॉफी टी बनता है, सो नहीं, दिस इज एन एडवाइस, आई एम जस्ट सजेस्टिंग दिस, इट्स अ सजेशन फॉर यू। All right, is that clear? Like I must achieve my goals. Is the model like this? Yes, that is absolutely right, Priyanshi. बेटा मैंने यही तो बताया आपको, ठीक है? Alrighty, here we go. राज studied hard so that he should score first position. तो राज ने बहुत मेहनत की जिससे कि उसको फर्स्ट पोजीशन आए, तो उसका पर्पस था। All right, Manisha should get angry if she came to know that Varnika spread rumors about her. Imaginary result है, मनीषा वो गुस्सा हो जाती है अगर उसको पता चल जाता कि वर्णिका ने उसके लिए मतलब उसके खिलाफ कुछ अफवाहें फैलाई हैं। दिया शुड बी ग्रेटफुल टू अमन हु हेल्प्ड हर विद द नोट्स ऑन टाइम, मतलब दिया जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होनी चाहिए अमन को जिसने उसे हेल्प किया नोट्स के साथ टाइम पर, तो ये एक तरीके का पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब हम आते हैं कुड पे। कुड आपका पास्ट टेंस है, ठीक है, इट्स पास्ट टेंस ऑफ कैन। सो कैन मैंने आपको ब्रॉडली बताया था, लाइक इट ब्रॉडली वर्क्स लाइक व्हाट, इट ब्रॉडली वर्क्स एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, sorry, it broadly works as the like as the indication of your ability, your capability. So similarly now here could also like talks about your ability, your capability, but in the past. For example, if I'm saying that I could walk for like 500 meters easily, पहले, लेकिन अभी नहीं, okay, so now there is that difference. So ability or the capacity in the past, we go ahead with could. Okay, when there is some sort of a possibility under a particular circumstance, for example, I could have really scored good marks if I had got a proper tuition, मतलब मैं ना बहुत अच्छे से स्कोर कर सकता था, तो ये एक सिचुएशन थी, ठीक है, वो एक पॉसिबिलिटी थी कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में अगर मुझे ट्यूशन सही से दी होती तो मैं अच्छे से, मतलब अगर मैंने ट्यूशन सही से अटेंड की होती या मुझे ट्यूशन सही से मिली होती तो मैं अच्छे से स्कोर कर सकता था, तो वो एक पॉसिबिलिटी थी एक प्रॉपर लाइक एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंडर, ठीक है, दैट इज व्हाट वी सी। नाउ हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलाइट रिक्वेस्ट। देखो कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है, वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है, लेकिन कुड के साथ आप ज्यादातर हमेशा वर्ड प्लीज देखते हो, तो हम हमेशा कुड को मोर पोलाइटर वाले डोमेन में रखते हैं, ठीक है, लाइक इट इज मोर पोलाइटर। ऑल राइट, इज दैट क्लियर एवरीवन? Is that clear to everyone? Everyone, is that clear? So basically could यहाँ पे क्या है, could यहाँ पे आपका past tense में यूज किया गया है और हम एक possibility की बात कर रहे हो एक particular circumstance के अंदर, so what do we say? We say that it is like what, like in that case you are going to use could. All right, clear? Good, let's get going everybody. Towards the examples, I could increase the sales by 20% if I become the manager. तो ये एक possibility है, यानी कि एक chance है, ठीक है, एक ही चीज है एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंडर, मतलब मैं सेल्स को 20% तक इंक्रीज कर सकती हूँ अगर मैं मैनेजर बन जाऊं तो। ऑल राइट, कुड यू गेट मी अ कप ऑफ टी, पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या आप मेरे लिए एक कप ऑफ टी ला सकते हैं, तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। I could read for hours when I was a student. मैं बहुत देर तक पढ़ सकता था जब मैं एक बच्चा था, तो ये आपकी कैपेबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं कौन सी कैपेबिलिटी की बात कर रही हूँ, मैं ये आपकी पास्ट कैपेबिलिटी की बात कर रही हूँ। ऑल राइट, क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नीड टू की। नीड टू बेसिकली एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी की बात है। ऑल राइट, व्हाट डज दिस बेसिकली मीन, कि जब मैं किसी चीज की बात कर रही हूँ, ऑल राइट, देखो विजिट द ताजमहल इफ देयर ही वांटेड, if they wanted, ठीक है, there is a model, all right, that is absolutely correct. हाँ, पॉसिबिलिटी की जगह प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो, दैट इज ओके। ओके, नीड टू, देखो नीड टू आप हमेशा यूज करोगे जब आपको जरूरत की जरूरत नहीं है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग दैट यू नीड नॉट लाइक वरी अबाउट मी, आई विल रीच माई होम ऑन टाइम,
ठीक है। सो जब मैं कह रही हूँ कि किसी चीज की नेसेसिटी है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, उस केस में ऑल्सो अगर किसी चीज की जरूरत है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, एग्जाम्पल से समझो। देखो ये मेनली यूज होते हैं क्वेश्चंस में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में। जो नीड टू है ना, ये हमेशा ज्यादातर आपके क्वेश्चंस में, ठीक है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में, या फिर ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। नो प्रॉब्लम उत्कर्ष। तो इसका कोई पास्ट टेंस नहीं है, ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हो। इसका फॉर्म कोई चेंज नहीं होता है, और ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, नीड रोमा प्रैक्टिस मोर ऑन हर हैंड राइटिंग। तो ये कंपल्शन है कि क्या उसे जरूरत है कि वो और भी प्रैक्टिस करे हैंड राइटिंग पे। तो ये एक तरीके की जरूरत वाली चीज मैं बता रही हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, यानी क्वेश्चंस में। आई नीड नॉट हैव वेटेड फॉर यू, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। मुझे ना कोई जरूरत नहीं थी तुम्हारे लिए वेट करने का, तो यानी कि जरूरत की जरूरत ना हो, दैट इज वेयर यू यूज दैट। नाउ कमिंग टू ought to। ought to आपका रिलेट करेगा मस्ट से और शुड से। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ought to हम यूज करते हैं जब हम ज्यादा सीरियस सिचुएशन की बात करते हैं, ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? जब मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया था, आपको पता है आपके एग्जाम आ रहे हैं, और मुझे पता है दैट यू आर सो बैड एट ग्रामर, ठीक है, राइटिंग स्किल्स में भी यू आर वेरी बैड, or I'm just seeing this like regularly that you are not paying attention to all these things. तो अब मैं बोल रही हूँ that you ought to pay attention to grammar skills and the writing skills, otherwise you will definitely fail in your examination this time. ठीक है। सो ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। अर्लियर व्हेन आई मेट यू लाइक 6 months prior to your examination, you were just practicing. I was like that you must or you should practice on a daily basis for like half an hour. वहां पे मैंने शुड बोला था, क्यों? क्योंकि अभी बहुत टाइम था और मेरे को ये था कि आपको आपको इस चीज की आदत पड़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन एवरी वन, वट आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट इज कि अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ दैट यू ऑट टू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस फॉर लाइक 2 hours नाउ, वाई? क्योंकि मुझे पता है आपके एक हफ्ते में एग्जाम है, अगर अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो पक्का से फेल हो जाओगे। सो वहां पे आप ऑट टू यूज करते हो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक द मोर सीरियस सिचुएशन, देयर इन यू गो अहेड विद इट। So if it's an advice, if it's an obligation, if it's a duty, of course you're gonna go ahead with it if you're talking in a very serious manner. अगर मुझे पता है that there is nobody to look after your younger sister, तो मैं ये बोलूँगी you should babysit your sister. Sorry, you ought to babysit your sister. No, मतलब your mom is not available, or maybe she's not keeping well, and your dad is out in order to earn money because the financial conditions are not good, and you're there at home, you're managing your studies, so there's nobody to look after your younger sister. So you ought to look after your younger sister. So there comes your duty, there comes your obligation, and it works as an advice as well simultaneously. कोई नहीं है तो तुमको ही करना पड़ेगा, like that. ठीक है? Is that clear everyone? नाउ एक लॉजिकल डिडक्शन, यानी कि एक लॉजिकल रीजन पे भी अगर आप आ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट दिस ईयर द क्रॉप और टू डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रेन। तो मुझे पता है इस साल बहुत बारिश हो रही है, सो जो क्रॉप्स हैं वो पक्का से सड़ जाएंगी। सो आई एम कमिंग टू अ लॉजिकल डिडक्शन, दैट मीन्स मैं एक लॉजिकल कंक्लूजन, एक लॉजिकल रीजन पे आ रही हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट समथिंग हैपेंड. So if I'm coming to any logical decision on the basis of something that I see, then there comes what? Your use of ought to. All right, which Telegram channel are you talking about? Unacademy Telegram channel, it's given in the description below. फिर प्रोबेबिलिटी की भी बात, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली मीन्स जब आपके 100% चांसेस हैं, ठीक है, हायर चांसेस की जब बात हो जाए, ठीक है, तब आप ought to यूज करते हो। कीप इट इन योर माइंड। सो यू आर टू फुलफिल द प्रॉमिस यू मेड। तुम्हारी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है कि जो तुमने प्रॉमिस किया था वो तुम्हें पूरा करना है। Shambhavi ought to study at least 1 hour a day if she wants to clear the exam. Advice है, वो भी serious, 1 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम क्लियर करने में। The country's economy ought to crash due to the pandemic. पैंडेमिक से इतना नुकसान हुआ है तो मुझे पता है और सबको ही पता है कि इकोनॉमी बहुत सफ़र करी है, तो हम बोल रहे हैं जो कंट्री की इकोनॉमी है वो पक्का से क्रैश होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हाई चांसेस। पूनम हैज सिंसियरली प्रैक्टिस अ लॉट फॉर हर मैच। पूनम ने बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस किया है, शी ought to win it। तो मैंने लॉजिकल रीजन पे आया है, मेरा मतलब लॉजिकल रीजन पे मैं आई हूँ कि वो पक्का से जीतेगी, दैट इज व्हाट आई मेन। Alrighty, Shiddat, I'll just let let's be raised, okay? I'll discuss this and you'll get it soon,
All right. Don't be worried about it. Okay, in the next session, you'll see it. Don't be worried about it. I'll be definitely providing it to you. But if you are worried about not receiving any update, then I would really suggest please make sure that you're keeping an eye on the channel in terms of just subscribing the channel, because once the session starts, you get a notification for the same. ठीक है. आप यूज टू हमारा लास्ट है ये मॉडल वर्ब, ये हम यूज करते हैं हमारी पास्ट की हैबिट्स के लिए. जैसे कि आप बोलो दैट आई यूज टू गेट अप एट 6 o'clock. अगर मैं अपनी बात करूँ मैं कॉलेज डेज की, तो मैं बोलूँगी दैट आई यूज टू गो टू माई कॉलेज बाय 9 AM. ठीक है, मैं 9 बजे तक ना चली जाती थी अपने कॉलेज. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट आई यूज टू टेक पार्ट इन दी डिबेट कॉम्पिटिशन्स अ लॉट. मैं बहुत ज़्यादा डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी. आई यूज टू विन द एक्सटेम्पोज, मैं एक्सटेम्पोज जीता करती थी. आई यूज टू टेक पार्ट इन दी इंटरजोनल डांस कॉम्पिटिशन्स. मैं इंटरजोनल डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया करती थी. सो वो सारी मेरी पास्ट हैबिट है. ऑल राइट मनीष बेटा, मैंने आपको यही समझाया है. और टू सीरियस कंडीशंस के लिए यूज होता है, बहुत सीरियस. ठीक है, मस्ट आपका जो मैंने रूल्स बताए हैं, आई डोंट नो इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास अभी, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सेशन ओवर हो तो एक बार प्लीज बेटा वीडियो देख लेना. बिकॉज इफ आई एम गोना रिपीट अगैन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑल्सो, आई एम गोना रिपीट द सेम थिंग, सो देन लाइक द रेस्ट ऑफ द टॉपिक वुड नॉट बी डन इन टाइम. ओके, ऑल राइटी. Now, existence of something in the past. For example, अगर मैं बोल रही हूँ that the life used to be so carefree before pandemic. तो पहले जिंदगी बहुत फ्री होती थी. Now we have to put on the mask. We have to be very careful. We have to be like obviously like we have to make sure that nobody's sneezing around, or if somebody is doing that, he or she is using the handkerchief or a tissue, right? So all these things that you have to be very careful about. I used to have a cup of tea after every meal. Past habit. मैं एक कप चाय की प्याली पिया करती थी हर मील के बाद. There used to be a bakery on that street. तो उस स्ट्रीट पे ना एक बेकरी हुआ करती थी. तो मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ है जो पास्ट में एग्जिस्ट करती थी. Now determiners. Determiners क्या होते हैं? We are done with the topic models. I hope that you all got that. Now understanding the determiners. Can anyone tell me determiners क्या होते हैं? Yes, everybody. Quickly, everyone. Yes, everybody. What are determiners? Anybody? Okay, everybody. So basically, the determiners, they basically talk about what? Determiners are the words, all right. They are placed always in front of a noun. ठीक है, जैसे कि आपने अगर सैम्पल पेपर का डिस्कशन देखा है, उसमें मैंने आपको बताया है कि डिटर्मिनर्स में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. दैट स्पेसिफाई द नाउन. ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है मनीष बेटा, मैं हिंदी में ही धीरे से बात कर रही हूँ. तो डिटर्मिनर्स वो वाले शब्द होते हैं जो हम हमेशा नाउन से पहले लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ द ब्लू कार, ठीक है, तो कार मेरा नाउन हुआ. ठीक है, ब्लू बीच में एडजेक्टिव आ गया जो उसे मॉडिफाई कर रहा है. ऑल राइट, और द यहाँ पे मेरा आर्टिकल आ गया विच इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर. तो वो स्पेसिफिकली मुझे बता रहा है कि मैं ब्लू कार की बात कर रही हूँ. ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो डिटर्मिनर्स का मतलब होता है जो हमेशा आपके नाउन से पहले रखा जाता है. जैसे कि अ, जैसे कि द, जैसे कि माई, दिस, सम, मेनी. अगर मैंने आपको बोला सम फ्रूट्स, तो फ्रूट्स आपका नाउन हो गया. ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. दिस इज बेसिकली अ नाउन. नाउन से पहले आपने ये डिटर्मिनर लगा दिया सम. अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ दिस शर्ट इज न्यू, ये जो शर्ट है ये नहीं है, तो शर्ट क्या है यहाँ पे? शर्ट मेरा नाउन हो गया. दिस क्या है? दिस इज बेसिकली अ डिटर्मिनर. और ये कौन सा डिटर्मिनर है? ये मेरा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है जो अभी हम आगे करेंगे. तो बेसिकली क्या है, ये आपका जो डिटर्मिनर से जो आपका नाउन है उससे इमीडिएट पहले जो वर्ड होता है उसको हम डिटर्मिनर बोलते हैं. और डिटर्मिनर्स किस लिए यूज किए जाते हैं? वो हमेशा कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे होते हैं रिलेटेड टू वर्ड, रिलेटेड टू हमारा नाउन.
ओके, इज दैट क्लियर? यस प्रियांशी। मनीष बेटा नहीं बेटा, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल क्लास नहीं है, you'll be having the class day after now। तो कितने टाइप्स के डिटर्मिनर्स होते हैं? बहुत टाइप्स के होते हैं, हम सबको भी डिटेल में करेंगे। पहला आपका आता है प्री डिटर्मिनर, फिर आपके आते हैं आर्टिकल्स, फिर आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स, फिर आते हैं पोजेसिव्स, देन यू हैव ऑर्डिनल्स, यू हैव कार्डिनल्स, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड इंटेरोगेटिव्स। So this is really an important thing to be kept in your mind. All right. Predeterminers, pre का मतलब होता है जो पहले आते हैं, और प्री डिटर्मिनर का मतलब क्या हुआ? जो डिटर्मिनर से पहले आते हैं। आर्टिकल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल्स में हमारे होते हैं ए एन द, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव बेसिकली होता है जो कुछ दिखाता है, यानी कि जो कुछ डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो कुछ शो करता है। तो दिस कम्स लाइक दिस, दैट, दीज और दोज। फिर आपका अभी मैं बताऊंगी डिटेल में भी। पोजेसिव, पोजेसिव्स क्या होते हैं? दैट आई पोजेस इट, मतलब इट बिलोंग्स टू मी, ठीक है। पोजेसिव्स बेसिकली टॉक अबाउट योर बिलोंगिंगनेस, लाइक समथिंग बिलोंग्स टू यू। या उत्कर्ष। देन वी हैव ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स बेसिकली पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं, लाइक दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो फर्स्ट जो है वो मेरा डिटर्मिनर है, स्टूडेंट जो है वो मेरा नाउन है। ऑलराइट, देन वी हैव दी कार्डिनल्स और न्यूमरल्स। तो कार्डिनल्स क्या होता है? कार्डिनल्स बेसिकली नंबर्स होते हैं, लाइक आई हैव वन पेन, आई हैव टू फोन्स, ठीक है। सो जो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर होता है, न्यूमरल होता है, उसको मैं कार्डिनल बोलती हूँ। फिर हमारा आता है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर होता है जब मैं क्वांटिटी की बात करती हूँ, जैसे कि अगर मैंने बोला देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मेनी तो मेरा क्वांटिटी बता रहे हैं ना कि एक से ज्यादा है, और स्टूडेंट्स है यानी कि नाउन स्टूडेंट्स के साथ लगाया है तो डिटर्मिनर। डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं जैसे कि ईच, एवरी, नन, ईदर, ये वाले वर्ड्स। फिर इंटेरोगेटिव्स यानी कि WH वर्ड्स। आपके WH वर्ड्स एवरीबडी वर्क एज योर डिटर्मिनर ओनली एंड ओनली इफ WH वर्ड के इमीडिएटली बाद आपके नाउन है। अगर नाउन नहीं है उसके इमीडिएटली बाद, देन दैट्स प्रॉब्लमैटिक, दैट इज वर्किंग एज अ क्वेश्चन एंड नॉट एज अ, दैट इज वर्किंग एज अ क्वेश्चन वर्ड एंड नॉट एज अ डिटर्मिनर, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो प्री डिटर्मिनर में ना हमारा क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो मेन डिटर्मिनर के पहले लगाया जाता है, लेकिन वो मेन नाउन ग्रुप का पार्ट होता है। जैसे अगर मैंने बोला कि बोथ आर सिस्टर्स, ठीक है, तो सिस्टर्स हुआ नाउन, ठीक है। आवर हुआ मेरा एक्चुअल में मेन डिटर्मिनर डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, पोजेसिव मेरी बहनें, और बोथ बेसिकली हुआ प्री डिटर्मिनर। तो बोथ आपका एक प्री डिटर्मिनर होता है। तो हमारी क्या लिस्ट है डिटर्मिनर्स की? जैसे यहाँ पे देखो, मीता इज चार्जिंग हाफ फॉर द केटरिंग, ठीक है, केटरिंग नाउन है, द मेरा मेन वर्ब है, सॉरी द मेरा मेन डिटर्मिनर है, हाफ मेरा प्री डिटर्मिनर। शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल नाउन, इंटेलिजेंट मेरा आप एडजेक्टिव्स बीच में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एन मेरा आर्टिकल मेन डिटर्मिनर, सच इज वर्किंग एज अ प्री डिटर्मिनर। डिड कनक रेड ऑल दोज बुक्स, ओके, सो यहाँ सॉरी डिड कनक रीड ऑल दोज बुक्स, सो दोज मेरा क्या आया? डेमोन्स्ट्रेटिव। ऑल जो आया वो मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी, और दोज मेरा मेन डिटर्मिनर है डेमोन्स्ट्रेटिव, ऑल मेरा प्री डिटर्मिनर है, एंड बुक्स मेरा नाउन। सिंपल। तो चार कैटेगरीज है, चार ब्रॉड कैटेगरीज है आपकी, एक मल्टीप्लायर्स, एक फ्रैक्शंस, एक इंटेंसिफायर्स और एक अदर, ठीक है। मल्टीप्लायर्स में आप हमेशा ऐसे तरीके के वर्ड्स यूज करते हो, ट्वाइस, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स। फ्रैक्शंस में आप बोलते हो हाफ, वन थर्ड, वन एट। इंटेंसिफायर्स में आप बोलते हो रादर, सच, क्वाइट, व्हाट, एंड अदर्स में ऑल एंड बोथ, दैट्स इट। मल्टीप्लायर्स में हमेशा आप ऐसे वर्ड्स देखोगे लाइक द आइसक्रीम इज ट्वाइस द साइज ऑफ माइन, शी चेक्स हर मेल्स 3 टाइम्स एवरी डे, ओके। फ्रैक्शंस में आसान है बिल्कुल, आई एट वन थर्ड ऑफ सान्याज लंच, और शौर्याज बस विल अराइव इन हाफ एन आवर। इंटेंसिफायर्स में आप क्या करोगे? इंटेंसिफायर्स में हमारा जो बेसिकली आता है, लाइक हाउ डज दैट हैपन, लाइक यहाँ पे जैसे है द दिस इंटेंसिफाई का मतलब होता है कि थोड़ा सा इस तरीके से बताना कि उसका इफेक्ट जो है आपको समझ आ पा रहा है। ऑल राइट, दैट इज व्हाट इट सेज। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोल रही हूँ दिस टर्न्ड आउट टू बी सच अ ब्यूटिफुल डे, तो डे मेरा हुआ व्हाट? डे मेरा हुआ नाउन।
ब्यूटीफुल हुआ एडजेक्टिव, अ हुआ मेरा मेन डिटर्मिनर आर्टिकल, और सच हुआ मेरा इंटेंसिफायर। ओके, फिर बाकी के आपके जैसे और प्री डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे शी ब्रोक बोथ हर आर्म्स, आर्म्स नाउन, हर आपका मेन डिटर्मिनर, बोथ आपका प्री डिटर्मिनर। ओके, दैट इज व्हाट द थिंग इज, यू नीड टू लर्न द लिस्ट। आर्टिकल्स में आपका ए एन और द, इनडेफिनिट वो होता है जो नॉट फिक्स्ड, ठीक है, डेफिनेट होता है जो फिक्स्ड है। ऑल राइट, इनडेफिनेट आप यूज करते हो सिंगुलर के साथ, ऑल राइट, और डेफिनेट भी आप यूज कर सकते हो सिंगुलर या प्लूरल के साथ, बट ए और एन हमेशा सिंगुलर के साथ ही यूज होते हैं। और ए आप यूज करते हो लाइक जब आप जो कुछ जर्नल चीजों की बात कर रहे हो, ए हमेशा यूज होता है जिसके आगे कॉन्सोनेंट साउंड, आई मीन कॉन्सोनेंट साउंड जो वर्ड है उसके आगे अ यूज होता है। एन हमेशा यूज होता है उन वर्ड्स के साथ जिनके आगे वोवल साउंड है। कीप इट इन योर माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। ऑलराइटी, नेक्स्ट इज देखो, ए आप कहाँ यूज करते हो जहाँ पे वोवल साउंड आती है, जैसे यूरोपियन, यहाँ पे ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वोवल्स आपके ए ई आई ओ यू है, तो आपको उस कॉन्सेप्ट से नहीं जाना कि जो वर्ड इससे स्टार्ट हो रहा है वहां पे मैं वोवल लगा दूं, नहीं, आपको साउंड पे ध्यान देना है। यूरोपियन आपका कौन सी साउंड है, आपका य साउंड आ रहा है यहाँ पे, विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, एंड आप वहां लगाते हो जो वोवल साउंड से बिगिन करता है, जैसे कि ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पे ओ साउंड आ रही है इसलिए मैं यहाँ ऑनेस्ट लगा रही हूँ। दे लिव इन एन अपार्टमेंट, अ साउंड है, एन लगा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, जब आप किसी ऑक्यूपेशन की बात कर रहे होते हो उससे पहले आप हमेशा अ लगाते हो, ठीक है। अ आपका फ्यू के साथ यूज होता है और लिटिल के साथ भी यूज होता है। ऑलराइटी, नाउ मूविंग अहेड, आपका क्या कहते हैं, अ यूज होता है जब हम एक नाउन फ्रेज की बात कर रहे होते हैं, जैसे सिंपल मैनर में अ सिंसियर गर्ल। एन आपका यूज होता है जब हम एब्रीविएशंस की बात करते हैं जो एक वोवल साउंड से स्टार्ट होती है, जैसे एन एम आर आई। ऑल राइट, अ आपका यूज होता है जब हम सिंगल यूनिट की बात करते हैं, लाइक आई बॉट अ नाइफ एंड फोक, आई बॉट अ ब्रेड एंड जैम। ऑल राइट, दैट इज व्हाट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। नाउ मूविंग अहेड एवरीबडी, लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपका आर्टिकल द आता है, आप हमेशा उसको एक कॉमन नाउन से पहले यूज करते हो, जब आप कोई पर्टिकुलर चीज यूज करते हो उसके लिए बोलते हो, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो जो सिर्फ एक है इस दुनिया में तो द आता है, या कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग को रेफर कर रहे हो तो द आता है। साथ के साथ आप जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हो, जैसे द गिटार, या फिर आप कुछ बॉडी पार्ट्स की बात करते हो, द हार्ट, ओके, या फिर आप टाइम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो, द इवनिंग, द नाइट, द मॉर्निंग, ऑल राइट, या फिर जो आपने ऑलरेडी पहले कुछ मेंशन कर दिया होता है, बट द वुमेन वाज एडमेंट, लेकिन जो वो औरत थी वो बहुत जिद्दी थी, या फिर एक ऐसा नाउन जो फॉलो किया जा रहा है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज से, जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, जो एक प्रीपोजिशन से बिगिन होता है, लाइक ऑन द टेबल। सो नाउ ये वाला जो नाउन है, जो उससे पहले आप नाउन यूज करोगे उससे पहले आप हमेशा द लगाओगे। दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। द ताजमहल, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके, दैट इज वेरी राइट। नाउ अगर आपको कुछ फेमिलियर थिंग्स, जैसे कि आपको आपको पता है आपके घर में डाइनिंग टेबल है, सो यू आर लाइक द डाइनिंग टेबल, sorry, there is like one bowl of rajma kept on the dining table, ठीक है, तो आपको पता है फेमिलियर चीजें हैं। किसी डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम से पहले, लाइक इन द 1970s, एक नाउन से पहले जिसमें ऑफ दे रखा हो, so the dot cause a distraction of, ठीक है, ऑफ दे रखा है, सो द होल विलेज, या फिर सीज रिवर्स और माउंटेन्स, गैंजेस और लाइक वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, या फिर जो पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे द ताजमहल, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जैसे आप बोल रहे हो दैट शी इज द वर्स्ट कम्युनिकेटर और शी इज द बेस्ट कम्युनिकेटर, सो आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव की डिग्री यूज कर रहे हो तो वहां पे भी। Now coming to the next part, alrighty, which is your demonstratives. Demonstrative क्या होते हैं, जो demonstrate करते हैं यानी कुछ show करते हैं, यानी कि this, these, that and those, ठीक है। this आपका यूज किया जाता है सिंगुलर के साथ, that भी आपका सिंगुलर के साथ, those and these आपका प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, लेकिन this यूज किया जाता है उस चीज के लिए जो आपके पास है। this pen is black in color, ठीक है, ओके। अब मैं बोल रही हूँ दीज पेन्स आर ब्लैक इन कलर,
Okay, but I'm saying that those girls are very naughty. Those boys are very naughty. That girl is very naughty. So so that and those, they are used for the things that are far away. This and these are is used for the things that are near. Now, possessive basically refers to your belonging. ठीक है, जो भी चीजें आप मतलब बिलोंगिंगनेस से रिलेटेड जो भी होता है उसमें possessive, जैसे my house, my friend, my dad, my mom, their parents or his dad, her mom, her purse, her house, his bottle, his phone. All right, वहाँ पे we go ahead with possessives. Alrighty. So now you see that I'm talking about my scooter, or if I'm saying her car, if I'm saying her house, if I'm saying his notebook. Alrighty, here we go. Your dress. Okay, so your is basically working as what here? It is working as your possessives. Okay, clear? Ordinals मैंने जैसे आपको बताया, it works for the positions. All right. Now, for example, like she was the first one. Now she was the third runner up. So when we say like first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? वो ऑर्डिनल्स होते हैं जहाँ पे हम पोजीशन की बात करते हैं नाउन की एक सीरीज में, वहां पे आप बोलते हो दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली योर ऑर्डिनल्स. लेकिन हम कार्डिनल्स क्या होते हैं? कार्डिनल्स को हम नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जब हम नंबर्स को स्पेसिफाई करते हैं. जैसे मैंने बोला टू बर्ड्स, बिल्कुल नंबर, लाइक टू बर्ड्स, थ्री बर्ड्स, 1000 बर्ड्स, और 1000 रुपीज, और 65 रुपीज, 80 रुपीज. सो वट एवर इट इज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ठीक है, क्लियर? हाय नितिन. नाउ क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स बेसिकली डील विद योर क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटी से ये रिलेट करता है. जैसे अगर हम बोले सम स्टूडेंट्स, या several girls, या a lot of girls, both the girls, all the girls. ठीक है, सो वहां पे a lot of people noun, a lot of आपका क्वांटिटी बता रहा है. some fruits noun, some आपकी क्वांटिटी. enough food आपका नाउन, enough क्वांटिटी. much knowledge आपका नाउन, much आपकी क्वांटिटी. ठीक है. Distributors basically deal with the distribution. That's what you need to be very careful about, like when we are dealing with the distribution of things. Like each student, every student, either student, neither student. तो यहाँ पे each parent noun है, every bike noun है, and then either side of the house. So either आपका वो है क्या कहते हैं determiner, side आपका noun है, neither child, तो child आपका noun है. ठीक है, दैट्स हाउ यू गो. इंटेरोगेटिव्स यानी कि आपके क्वेश्चन वर्ड्स. ऑल राइट, आई टोल्ड यू द क्वेश्चन वर्ड्स दे विल वर्क एज डिटर्मिनर्स ओनली. उसके बाद अगर आपने टू आइसक्रीम, या दैट इज एब्सोल्युटली राइट. हाय काव्यश्री. इंटेरोगेटिव वर्ड आपका तभी काम करेगा एज अ डिटर्मिनर अगर उसके इमीडिएट बाद हमारे नाउन है. जैसे मैंने आपको बोला व्हाट टॉपिंग्स, सो टॉपिंग्स बेसिकली नाउन है और ये WH वर्ड है. विच स्कूल, स्कूल नाउन है, WH वर्ड है. हुज बेबी, बेबी नाउन है, हुज आपका डिटर्मिनर है. सो दैट इज हाउ यू नीड टू गो अहेड विद दीज थिंग. Okay, people? Alrighty guys, so I hope that everything is like clear to everybody right in there and you all have understood the things well. If you guys have any doubt, you can obviously come up with the doubts and you can just let me know whatever is in your mind, because we have got so many things like here in this particular topic. So अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो ask me the question. All right, because that's gonna be like really good for everybody right in there. If you have any question, you all can go ahead with it, everybody. I am distributing the books to all the children. Utkarsh, that is very right. Okay, what is your name? It's a question, Utkarsh. Utkarsh, ये आपका एक question है. ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो लाइक व्हाट इज द, आप ये बोल रहे हो बेटा कि मतलब व्हाट इज योर नेम, सो दैट इज मोर और लेस लाइक अ क्वेश्चन एंड यू डोंट हैव टू गो अहेड विद द क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट इज योर नेम इज अ क्वेश्चन. मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपको इमीडिएटली नाउन उसके बाद रखना है. इफ यू आर कीपिंग द नाउन देन दैट्स गोना बी फाइन. शी लिव्ड ऑन द ईदर साइड्स. अंशरा, ईदर साइड्स ऑफ द रोड, या तो इधर या तो इधर.
ओके आप इधर तब लगाते हो जब आप लोगों को डिटर्मिनर्स बहुत एक्सटेंसिवली सिर्फ डिटर्मिनर्स करवाए थे, वहां पे मैंने इधर एज अ प्रोनाउन एंड एज अ डिटर्मिनर आपको समझाया था. सो प्लीज मेक श्योर कि आप वो वाला सेशन देख रहे हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस. हे श्याम, हाय डियर. सेंटेंस मैंने बोला. ओके सो ये व्हाट इज योर नेम आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है. यहाँ पे आपका डिटर्मिनर नहीं है कहीं पे भी. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. So chaliye students, now you know that we had an amazing list. Okay, CBSE class 10 achievers list. It was like super amazing, remarkable performance by Unacademy learners in CBSE class 10 board examination. 99.8% were the highest scorer. All right, 412 plus learners secured 90% or more. 100 plus learners secured 95% or more, and 114 plus learners secured 100 marks in different subjects. So we have got like with us Iconic as well as Plus. In Iconic, we are offering you all personal guidance, one-on-one guidance from the top exam experts. Alrighty, everybody. And test analysis would be there, one-on-one guidance from the top exam experts. Study planner would be there, customized study plan with bi-weekly reviews. Study material would be there, specialized notes and practice tests. Experts guidelines would also be there. Live classes would be there, weekly tests and structured courses and unlimited access and Plus. So if you go ahead with Iconic, you're gonna get all the benefits of Plus as well. All you need to do is that just make use of the code PSH10 क्योंकि ये code use करते ही आपको अब 23% का discount मिलेगा. Alrighty. And you are gonna get that, okay, only till tomorrow. That is 22nd of September, 11:59 p.m. Don't let that date go, guys. It's really an amazing situation and an amazing opportunity for everybody right there. So you all can save up to 23% on your CBSE Plus subscriptions with a free extension of up to 2 months. For example, for Plus, if you go for 18 months, you'll be getting the 2 months extra. The current price would be 30,499. The total value is 35,565. What you're gonna pay is 27,449. What you're gonna save is 8,116, which is 23%. Okay, now for like 6 months plus 1 month, if you go ahead with 6 months, then the current price is 15,199. Total value is 17,732. What you're gonna pay is 13,679, and what you're gonna save is 4,053 rupees, which is 23% saving. So it's valid only till September 22. All right, 11:59 p.m. Immediately use the code PSH10 to avail the benefits, and just make sure you're coming under my guidance to just understand everything perfectly and to become so perfect in your subject English academically as well as practically, because I always say English stays with you for your entire life. It's a lifelong companion. Okay, so for more details, you can call at the number which is 8585858585. Okay, and afterwards, you can go ahead with the usage of the code and UNSAT, guys, which is Unacademy Scholarship Test, and like it's really amazing. You can crack UNSAT and you can win up to 100% scholarship in IITJ and NEET UG class 9 to 12 if you are aspiring and you're just like one of the parts of all these things. Then you can definitely go ahead with it. It's an exclusive access to special ranker group, win a trip to Eurospace Center. Test dates would be your October 8 and 15. Just make use of the code PSH10 and make a move immediately. You can register at the number 8585858585 for more details. And guys, because quality education is a basic right, so big announcement is coming for all of you on September 26th. Stay tuned, everybody. Keep following dedicatedly with all your heart and make sure that you are studying well. You're coming under the correct guidance for your welfare. Now we started the target half yearly for class 9. The amazing batches are always there, okay, for all our dear and darling students. It got started on September 1, 2022. Mode of delivery was Hindi. Himal sir, Kunal sir, Digraj sir, Bhavna ma'am, and Lakhan sir were there. You have to make use of the code PSH10 to be part of all these amazing batches, because now my batch is also coming. Okay, which is going to be started from 30th September. The Umang batch it is, and it's going to be like super amazing. Please make sure you all are coming under the correct guidance for us. Alrighty. Then we have the rapid revision half yearly. This is for class 10. The start date is September 1, 2022. Mode of delivery is English. Vinay, Bhavna ma'am, Digraj sir, Vanna ma'am, and Akash sir. They are all going to be there for all of you. Okay. So Vinay sir is going to teach you maths. Bhavna ma'am is teaching science. Digraj is teaching social science. Vandana ma'am is teaching English. And Akash sir is teaching Hindi bhi. So you can be a part of all these amazing matches. Just use the code PSH10 and you're good to go.
So thank you everybody. Alrighty everyone. So we are going to meet soon. Till then, take care. We do not have any class tomorrow. We are gonna meet day after. So please be right there. Alright, the session would be scheduled. Please make sure that you're setting a notification for yourself. If you're watching the video for the first time, then do not forget to hit the bell button and definitely like the session and share it with all your friends. I'll catch you all soon. Take care.